آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ آداب، خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ بیگم۔ پہلے اس وقت کی خاص خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج اور کل رائے پور ڈی جی پیز اور آئی جی پیز کی 60ویں آل انڈیا کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اندرونی سلامتی، دہشت گردی سے نمٹنے، خواتین کی حفاظت اور پولیس کے کام کاج میں اختراع جیسے موضوعات چھائے رہنے کا امکان ہے۔ انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال میں چناؤ فہرستوں پر خصوصی تفصیلی نظر ثانی سے متعلق ترنمول کانگریس کے سبھی خدشات سے انکار کیا ہے۔ سمندری طوفان دتوا، جس کے تحت سری لنکا میں 69 جانیں جا چکی ہیں، امکان ہے کہ یہ کل صبح شمالی تمل ناڈو، پڈوچیری اور جنوبی آندھرا پردیش پہنچ جائے گا۔ گوا میں افی 2025 کی شاندار اختتامی تقریب میں رجنی کانت کو اعزاز سے نوازا گیا اور دھرمیندر کو یاد کیا گیا۔ بھارت کو 2026-27 کے لیے بین الاقوامی سمندری تنظیم کی کونسل میں سب سے زیادہ ووٹوں کے ساتھ دوبارہ منتخب کیا گیا ہے۔ اور چنئی میں ایف آئی ایچ مردوں کے جونیئر ہاکی عالمی کپ 2025 کے پہلے میچ میں بھارت نے چلی کو 7-0 سے ہرایا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج چھتیس گڑھ میں پولیس کے ڈائریکٹرز جنرل اور انسپکٹرز جنرل کی 60ویں کل ہند کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ وہ کانفرنس کے تحت آج اور کل مختلف اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مذاکرات میں نئے دور کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے شہریوں کی حفاظت کے مقصد سے اگلے مرحلے کے سیکیورٹی فریم ورکس تیار کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ قومی سیکیورٹی سے متعلق بنیادی معاملات پر بھی تفصیلی بات چیت کی جا رہی ہے، جس میں اندرونی سلامتی، دہشت گردی سے نمٹنا، قدرتی آفات سے نمٹنا، خواتین کی حفاظت اور پولیس کے کام کاج میں فورینسک سائنس اور مصنوعی ذہانت اے آئی کا استعمال بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم کانفرنس کے دوران غیر معمولی خدمات پر صدر جمہوریہ کا پولیس میڈل بھی عطا کریں گے۔ یہ 3 روزہ کانفرنس نوا رائے پور میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ میں کل شروع ہوئی تھی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اس کانفرنس میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، داخلی امور کے مرکزی وزیر مملکت، مختلف ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پولیس کے ڈائریکٹر جنرل اور مرکزی پولیس تنظیموں کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ انتخابی کمیشن ای سی نے سبھی خدشات کا نقطہ بہ نقطہ انکار کیا ہے اور ٹی ایم سی وفد کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ ڈیرک اوبرین کی قیادت میں ایک 10 رکنی وفد نے کل نئی دلی میں انتخابی کمیشن سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات مغربی بنگال میں جاری چناؤ فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کے معاملے پر کی گئی۔ کمیشن نے وفد سے کہا کہ وہ 9 دسمبر کے بعد دعوے اور اعتراضات پیش کرے جب فہرست کا مسودہ اس کو دیا جائے گا۔ کمیشن نے کہا کہ تب تک پارٹی بوتھ سطح کے افسران، الیکٹورل رجسٹریشن افسران اور ضلع انتخابی افسران کی آزادانہ کارکردگی میں دخل انداز نہ ہو، جو انتخابات سے متعلق کام کاج کے لیے تعینات کیے گئے ریاستی سرکار کے ملازمین ہیں۔ کمیشن نے مغربی بنگال کے ڈائریکٹر جنرل اور کولکتہ کے پولیس کمشنر کو بھی ایک خط لکھا ہے، جس کا مقصد اس بات کی یقین دہانی کرانا ہے کہ بی ایل اوز کو سیاسی پارٹی کے ہاتھوں کسی طرح کے دباؤ میں نہیں لیا گیا ہے یا انہیں کوئی دھمکی نہیں دی گئی ہے۔ انتخابی کمیشن نے سبھی ڈی اوز کو ہدایت دی ہے کہ وہ سلم علاقوں، اونچی عمارتوں اور ایسی رہائشی کالونیوں میں جہاں دروازے لگے ہیں نئے پولنگ اسٹیشنوں کی یقین دہانی کرائے، جیسا کہ اس کی ہدایت کے مطابق پورے بھارت میں کیا جا رہا ہے۔ سری لنکا میں سمندری طوفان دتوا کے بڑھتے ہوئے اثرات کا اب بھی سامنا ہے۔ کئی ضلعوں میں اس طوفان میں مرنے والوں کی تعداد 69 ہو گئی ہے، 34 افراد لاپتہ ہیں اور 2,19,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ 300 ملی میٹر سے زیادہ شدید بارش، 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تباہ کن ہواؤں، دور دور تک سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے سے ٹرانسپورٹ، بجلی سپلائی اور لازمی خدمات میں شدید طور پر رکاوٹ آئی ہے۔ حکام نے مزید بارش اور تیز ہواؤں سے خبردار کیا ہے کیونکہ یہ طوفان شمال شمال مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بھارت نے آپریشن ساگر بندھو کے تحت اپنی طرف سے ہنگامی امداد روانہ کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور سری لنکا کی مدد کے بھارت کے عزم کو دہرایا کیونکہ سری لنکا کے حالات دن بدن بدتر ہو رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
श्री लंका में नदियों के लेवल में इजाफा होने के साथ और नए लैंडस्लाइड्स के खतरे के बढ़ने के साथ श्रीलंकाई रेस्क्यू टीमों को वक्त के खिलाफ दौड़ना पड़ रहा है। भारतीय बहरिया के हेलीकॉप्टर श्रीलंकाई सरकारी अफवाज के साथ अब दूर दराज इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। कल INS विक्रांत और INS उदयगिरी की तरफ से तिब्बी सामान पहुंचाने के बाद ऑपरेशन सागर बंधु के तहत आज सुबह भारत से मजीद तिब्बी सामान पहुंचा है। डिजास्टर हुकाम ने खबरदार किया है कि कैलानी और महावेली समेत बड़े दरिया सैलाब की वार्निंग की सतह पर पहुंच गई हैं। हुकाम ने बेघर खानदानों के लिए 266 पनाह गाहों को खोला है। वहीं पुलिस डिवीजन की 47 हॉटलाइंस को भी एक्टिवेट किया है और लोगों पर जोर दिया है कि वो सैलाब, लैंडस्लाइड्स और दरख्त गिरने के इंतबाहात के लिए अलर्ट रहें क्योंकि खराब मौसम जारी है। खबरनामे के लिए कोलंबो से मैं अहमद मोइन फारूकी। दितवा तूफान श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद अब साहिली तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल ये श्रीलंका के साहिल के तकरीबन 80 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है और ये 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शिमाल मगरिब की तरफ और कराईकल के तकरीबन 220 किलोमीटर जुनूब मशरक की तरफ नीस पुडुचेरी के 380 किलोमीटर पर वाक़ है। दितवा तूफान रियासत के शिमाली साहिलों की जानिब बढ़ रहा है और ये चेन्नई के 430 किलोमीटर जुनूब में मौजूद है। कवी इम्कान है कि ये तमिलनाडु के नजदीक जुनूब मगरबी खलीज बंगाल और जुनूबी आंध्रा के साहिलों पर कल सुबह सवेरे पहुंच जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। तूफान के सबब साहिली इलाकों में तालीमी इदारे बंद और इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। जिन जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है उनमें नागपट्टिनम, तंजावुर और तिरुवरूर शामिल हैं। साहिलों पर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है और इन्हें खुराक और शेल्टर फराहम किए गए हैं। जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो पानी की सतहों और आबी ज़खायर पर नज़र रखें। ये हुकाम तूफ़ान के सबब समंदर के पानी में तुग़यानी पर नज़र रखें। ख़राब मौसम के सबब आवाम से कहा गया है कि वो अपने घरों में ही रहें। NDRF की टीमें तैयार किया गया है कि वो सूरत हाल पैदा होते ही रवाना हो जाएं। चेन्नई में परवाज़ों में रुकावट आ गई है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत का 56वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ़ी कल रात गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में तक़सीम इनामात की एक रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने इख्तितामी खिताब में वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने कहा कि इफ़ी का ये एडिशन गुज़िश्ता 7 बरसों में सिनेमा के शोबे में आलमी इश्तराक में तख्लीकी ज़हनों, फ़नकाराना सलाहियतों का शानदार इम्तिजाज साबित हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। कल रात एक रंगारंग शानदार तकरीब के साथ भारत बैनुल-अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल 2025 इफ़ी इख्तिताम पजीर हुआ। वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने भारतीय सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र को ख़राज अक़ीदत पेश किया। स्टेज फिल्म सितारों की कहकशां से रोशन था। रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में 50 बरस की उनकी खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ से नवाजा गया। एशले मैफेयर की हिदायतकारी में बनी वियतनामी फिल्म स्किन ऑफ यूथ ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। सिल्वर पीकॉक ज़ुमरे में संतोष दवाकर ने मराठी फिल्म गोंदल के लिए बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड जीता। इनके अलावा दिगर कई अहम अवार्ड भी तकरीब का हिस्सा बने। सारा मुश्तवा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। GST बचत उत्सव 22 सितंबर को शुरू हुआ था, जब नरेंद्र मोदी हुकूमत ने बहुत से शोबों में GST की शरहें कम की थीं, जिससे पूरे मुल्क के शहरियों को फायदा हुआ है। हमारे नामानिगार ने एक रिपोर्ट पेश की है कि किस तरह अगले दौर की GST इस्लाहात से खुराक के शोबे को फरोग हासिल हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। अगले दौर की GST इस्लाहात के तहत हुकूमत ने लाजमी खुर्दनी अशिया पर आयद GST को कम करके आम आदमी को एक बड़ी राहत दी है। तब्दील शुदा इस ढांचे के तहत पराठा, ब्रेड, रोटी, पनीर और इंतहाई ज्यादा दर्जा हरारत वाले दूध जैसी चीजों पर से टैक्स पूरी तरह हटा लिया गया है। मक्खन, घी, कंडेंस्ड मिल्क और जाम पर भी अब सिर्फ 5% GST लगा करेगा, जिससे औसत दर्जे की आमदनी वाले कुनबों में इन मसनूआत की मांग में इजाफा होगा। इसके साथ साथ नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, पीने के पानी, चटनी और रिफाइंड चीनी वाली अशिया जैसी खुर्दनी चीज़ों पर से टैक्स 5% कम कर दिया गया है। GST को माकूल बनाए जाने से खुराक पर आने वाले अखराजात में बेहतरी आई है। रोज़मर्रा के तग़ज़िये की यकीन दहानी हुई है और आम लोगों को माली राहत फराहम हुई है। रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
भारत को समुद्री तिजारत से मुतालिक बैनुल-अक़वामी तंजीम IMO की कौंसिल बराए 2026-27 के लिए सबसे ज्यादा वोटों के साथ दोबारा मुंतखब कर लिया गया है। कौंसिल के इंतखाबात कल लंदन में IMO असेंबली के 34वें इजलास के दौरान मुनक़िद किए गए थे। बैनुल-अक़वामी समुद्री तिजारत के वसी तरीन मफाद के तहत 10 मुल्कों पर मुश्तमिल ज़ुमरे में भारत को सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए। वोटिंग के दौरान भारत को कुल 169 वोटों में से 154 वोट हासिल हुए। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने इस हुसूलियाबी पर मसरत का इजहार किया और कहा कि भारत के लिए लम्हा बाइसे फख्र है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि भारत दुनिया में जल्द ही एक बड़ा सेमीकंडक्टर मुल्क बन जाएगा और मोहाली में कायम सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब SCL इसमें अहम रोल अदा करेगा। वजीर मौसूफ ने कल मोहाली में लैब SCL में सेमीकंडक्टर प्रोसेस गैलरी और परांगत सेमीकंडक्टर तरबियती लैब का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन के वजीर आजम के विजन के तहत पंजाब में कायम मरकज को 4,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से जदीद शक्ल दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शायरों कलमकारों से कहा है कि वो कश्मीर वादी में नौजवानों को शिद्दत पसंद बनाने और तकसीम करने जैसी अलहदगी पसंदाना कोशिशों का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद की ताकत को मुस्तहकम करें। जनाब सिन्हा ने कल जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से मुनक़िदा कवि सम्मेलन से खिताब करते हुए ये बात कही। महकमा मौसमियात IMD ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कई मकामात पर शदीदतर बारिश की पेशगोई की है। IMD ने आंध्र प्रदेश में भी निहायत शदीद बारिश की पेशगोई की है। उसने केरला, माहे और अंदरूनी कर्नाटक में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि मशरक़ी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में दूर दराज के इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। हॉकी में कल चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेले गए 21 साल से कम उम्र के मर्दों के FIH जूनियर हॉकी आलमी 2025 के पूल B के अपने पहले मैच में भारत ने चिली को 7-0 से हरा दिया। भारत समेत दिफाई चैंपियंस जर्मनी, अर्जेंटीना और बेल्जियम ने अपनी मुहिम की शुरुआत जीत से की है। 21 साल से कम उम्र के हॉकी खिलाड़ियों का ये टूर्नामेंट 2 शहरों चेन्नई और मदुरई में मुनक़िद किया गया है। भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए 18 रुकनी टीम का इंतखाब किया है, जिसकी कप्तानी दिफाई खिलाड़ी रोहित कर रहे हैं, जबकि कोच का फरीजा PR श्रीजेश अंजाम दे रहे हैं। पूल B में भारत के साथ चिली, ओमान और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। इस साल का FIH मर्दों का जूनियर हॉकी आलमी कप तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, जिसमें 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 6 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। मर्दों के जूनियर हॉकी आलमी कप का ये 14वां एडिशन है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के ज्यादातर अखबारात ने कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में मुनक़दा लक्षकंठ गीता पारायण प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब की खबर को शाह-सुर्ख़ी बनाया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गीता के अल्फाज न सिर्फ अफराद की रहनुमाई करते हैं बल्कि मुल्क की पॉलिसियों की समत भी तय करते हैं। भारत 50 मुल्कों के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदा FTA पर बातचीत कर रहा है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने सनती इदारे फिक्की की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। इस खबर को आज के बेशतर अखबारों ने खुसूसी तौर पर शाया किया है। रोज़नामा प्रताप ने लखनऊ के प्रजापता ब्रह्मा कुमारीज ऐश्वर्या विश्वविद्यालय में मुनक़दा आलमी इत्तेहाद और एतमाद के लिए ध्यान मुराक़बे की इफ्तिताही तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की शिरकत की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है, जिसमें इज़हार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भरोसा वहीं कायम होता है जहां ज़हन पुरसकून और जज्बात खालिस हों। मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार GDP ने रफ्तार पकड़ी, दूसरी तिमाही में शरह-ए-नमू 8.2 तक पहुंची। इस खबर पर रोज़नामा इनकलाब और प्रताप ने तवज्जो मरकूज की है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज और कल रायपुर DGPs और IGPs की 60वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अंदरूनी सलामती, दहशतगर्दी से निमटने, खवातीन की हिफाजत और पुलिस के कामकाज में इख्तिराज जैसे मौज़ूआत छाए रहने का इम्कान है। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नजरसानी से मुतालिक तृणमूल कांग्रेस के सभी खदशात से इनकार किया है। समुद्री तूफान दितवा, जिसके तहत श्रीलंका में 69 जाने जा चुकी हैं, इम्कान है कि ये कल सुबह शिमाली तमिलनाडु, पुडुचेरी और जनूबी आंध्र प्रदेश पहुंच जाएगा।
گوا میں افی کی شاندار اختتامی تقریب میں رجنی کانت کو اعزاز سے نوازا گیا اور دھرمیندر کو یاد کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔